everyone, myself Archana Palandurkar. Again I am here with the new video that is based on ecosystem. As you know, we have started the second chapter, that is ecosystem. Ecosystem, introduction of ecosystem and nature and structure of ecosystem was discussed in earlier class, and this is our second class of ecosystem. In this class we are going to discuss the natural ecosystem. First of all, we will start with the types of ecosystem. There are two types of ecosystem, basically two types of ecosystem. First one is the natural ecosystem and second one is the man-made ecosystem. Natural ecosystem, it is totally dependent on the sunlight. Naturally form ecosystem, that is natural ecosystem. For example, ocean as an ecosystem, बनाया है क्या किसी ने उसको? नहीं, वो naturally बना हुआ है. Then river as an ecosystem, grassland as an ecosystem, desert as an ecosystem, all those are the examples of natural ecosystem. After that, second one is the man-made ecosystem. Man-made ecosystem means हमने बनाया हुआ, प्राकृतिक तरीके से उसको बनाया हुआ है, that is man-made ecosystem. The agricultural field is included in it, the zoological park is included in it, the national wildlife sanctuaries are included in it. तो वो हम next video में देखेंगे. So today we are going to discuss only about the natural ecosystem. सो ओशन मैंने बताया था, ओशन एज एन इकोसिस्टम या रिवर एज एन इकोसिस्टम. तो ये इकोसिस्टम, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टडी द ओशन इकोसिस्टम बिकॉज ocean is very big in size and the variety of plants and animals are vast in ocean. तो वो difficult हो जाता है कि इतने सारे इसको combine करके वो एक ocean को ecosystem में पड़े. और river is having a flowing water. तो आपने 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के बाद में river का the concentration of water, the concentration of nutrients and minerals, the type and variety of plants and animals changes after every kilometer. तो वो भी difficult हो जाता है. So we always study the pond as an natural ecosystem. हम हमेशा natural ecosystem जब भी study करते हैं तो हम pond का example लेते हैं. pond इसलिए क्योंकि दिखता है ना, pond दोनों corner हमको दिखते हैं. pond एक short हम उसको बोल सकते हैं water body है. So it is easy to study the pond as an ecosystem because उसकी depth बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो we can penetrate towards this bottom and यहाँ पे भी हम study कर सकते हैं which kind of flora is present in there, which kind of fauna is present in there, which kind of nutrients are dissolved in that water. So pond is an ideal example of natural ecosystem. So we are going to discuss today the pond ecosystem. मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि when we talk about the ecosystem, which two factors are important? Abiotic and biotic. ठीक है. So always start with abiotic factor. Physical factor हम पहले लेंगे, उसके बाद में biotic factor. So abiotic factor of this pond ecosystem. Abiotic means non-living, हमेशा याद रखना. Biotic means living. So abiotic factors of this pond as an ecosystem. So that is divided into three parts. First one is the sunlight, second inorganic components, and third one is the organic components. First one is sunlight. Sunlight is very essential factor for any ecosystem. And pond ecosystem में क्यों? क्योंकि जैसे हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पे देयर इज नो नेसेसिटी टू डिस्कस द सनलाइट क्योंकि पूरे ग्रासलैंड में सेम सनलाइट मिल रहा है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वाटर बॉडी, द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट वेरीज from top to bottom, and that's why sunlight is essential factor. So this sunlight divide this pond in different 3 phases. ये तो हो गया आपका बहुत ज़्यादा sunlight रहेगा. Penetration of light is high to the top layer, then the middle layer, then the aphotic layer बोलते हैं हम इसको. Aphotic layer means जहाँ पे सनलाइट मिनिमम है, निग्लिजिबल है, अफोटिक लेयर. तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है माइक्रोबियल फ्लोरा एंड फोना या प्लांट एंड एनिमल जो है वो वेरी करेंगे डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ penetration of light. अपर लेयर में हम बहुत ज़्यादा ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी देखते हैं, वेजिटेशन देखते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ मैक्सिमम सनलाइट. एंड अपर लेयर इज हाईली सनलाइटेड एयर एंड दैट्स वाई algal लेयर इज फॉर्म ओवर द टॉप ऑफ द पॉन्ड. algal ब्लूम किसको बोलेंगे हम? आप किसी भी पॉन्ड को, लेक को देखिए जहाँ पे भी आप रहते हैं तो आपने नोटिस किया होगा द ग्रीन
ग्रीन कवर इज देयर ओवर द वाटर बॉडी, दैट इज द अल्गल ब्लूम। बहुत ज्यादा अलगी की ग्रोथ होने की वजह से वो अल्गल ब्लूम या फ्लॉक्स फॉर्म होते हैं, दैट इज अल्गल ब्लूम। आफ्टर दैट सेकेंड वन इज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आएगा हमारा, द वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, दोज ऑल आर द कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो दोज कंपोनेंट्स आर डिजॉल्व इन दिस वाटर, ठीक है, डिजॉल्व इन दिस वाटर। ऑक्सीजन इज ऑल्सो डिजॉल्व इन दिस वाटर इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, हम उसको बोलते हैं। ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर डिजॉल्व इन दिस वाटर एंड सम आर सेटल डाउन टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। मतलब ये इनऑर्गेनिक दोनों तरह से रहेंगे, डिजॉल्व फॉर्म में भी रहेंगे और सेटल डाउन भी रहेंगे। अगर इफ यू ब्रिंग अ सैंपल फ्रॉम एनी पॉन्ड वाटर बॉडी एंड यू आइडेंटिफाई इन अ लेबोरेटरी, you will find different types of plants and animals are merged in that water. वो छोटे छोटे zooplankton, phytoplankton भी उसमें दिखेंगे। Several kinds of nutrients are also there in that water. If you bring the sample from the bottom layer of the pond, you will find all the microorganisms are also present there. And all the nutrients are in the form of sediments. वो sediments में settle form में यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। After that, next one is the organic compound. Organic compound means the humic acid, the amino acids in the dissolved form or in the precipitate form. दोनों तरह से present रहेंगे वाटर में, डिजॉल्व फॉर्म में एंड सेडिमेंटेड फॉर्म में, दोनों फॉर्म में वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन दिस पॉन्ड इकोसिस्टम। एंड ऑल those three factors are essential for the growth of biotic component. जब तक ये अबायोटिक कंपोनेंट आपको नहीं मिलेंगे तब तक वहाँ पे ग्रोथ जो है वो इम्पॉसिबल है। सो बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक माइक्रोबियल फ्लोरा या बायोटिक फ्लोरा एंड फौना इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट इन दैट वाटर बॉडी। Next one is the biotic or living component. Biotic components are again divided into three parts. ये पूरे चैप्टर में ये बार बार रिपीट होगा, आपको भूलना नहीं है। Divided into three parts: producer, consumer and decomposer. Now switch on to the producer. यहाँ पे producer आपको क्या लगता है कौन से होंगे? पॉन्ड के बाहर हमको घास दिखती है, कुछ सरफेस में दिखती है, all those are the producer. Those producers are divided again. प्रोड्यूसर्स किसको बोलेंगे यहाँ पे, दैट कैन यूटिलाइज द मैक्सिमम सनलाइट एंड प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑल दोज आर द प्रोड्यूसर। एंड प्रोड्यूसर आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, दैट इज फ्लोटिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड सेकेंड वन इज द रूटेड प्लांट। अब फ्लोटिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स में बी द न्यू टॉपिक फॉर योर for the 11th standard student. Floating microorganisms means basically the phytoplanktons. पढ़ा होगा आपने, पर ये थोड़ा सा अलग है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटो मीन्स लिविंग, फाइटोप्लैंक्टॉन्स और हम उसको बोलेंगे प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फाइटोप्लैंक्टन मीन्स स्पाइरोगैरा, उसका एग्जांपल हम दे सकते हैं। तो स्पाइरोगैरा इज एन गुड एग्जांपल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। दे आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। वो आपको नेकेड आई से दिखेंगे भी नहीं, उनको अंडर माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा, बट दोज आर द प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर है। ऐसे छोटे छोटे प्रोड्यूसर जो है वो उनके लिए बाद में कंज्यूमर भी हमारे पास है। आफ्टर दैट द रूटेड प्लांट, ये हमको पता है रूटेड प्लांट कहाँ पे होते हैं। रूटेड प्लांट्स आर टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस बॉटम और बेंथिक लेयर ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम। तो उसमें भी हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। रूटेड प्लांट जो है वो भी तीन टाइप के होने चाहिए। फर्स्ट वन इज द इमर्ज वेजिटेशन। इमर्ज वेजिटेशन मीन्स जो अंदर पूरा यहाँ पे फ्लोट हो रहे हैं वो सारे उसको इमर्ज वेजिटेशन बोलेंगे। आफ्टर दैट द रूटेड वेजिटेशन। रूटेड वेजिटेशन मीन्स दे रिक्वायर्ड सॉइल फॉर द ग्रोथ, रूटेड वेजिटेशन। तो रूटेड वेजिटेशन जो है दोज आर द, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी होंगे, कुछ है यहाँ पे भी। तो दोज आर द रूटेड वेजिटेशन विच रिक्वायर्ड द बेंथिक लेयर और विच रिक्वायर्ड द मड लेयर, दोज आर द रूटेड। सम ऑफ रूटेड वेजिटेशन जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। टाइफा ग्रास आपने देखी होंगी, उसको बहुत बड़े बड़े वो पेड़ होते हैं और किसी भी पॉन्ड के कॉर्नर से आपको बाहर निकलते हुए दिखेंगे, दोज आर द रूटेड वेजिटेशन। आफ्टर दैट
सबमर्ज वेजिटेशन, सबमर्ज मीन्स जो पूरी तरह से यहाँ पे जो ग्रो हो रहे हैं, दोज आर द सबमर्ज वेजिटेशन। सबमर्ज वेजिटेशन में आपका हाइड्रिला आएगा, वो हाइड्रिला आपको बॉटम से लेकर टॉप तक हाइड्रिला कैन ग्रो। तो सबमर्ज वेजिटेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे आपका हाइड्रिला इज द एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज वेजिटेशन। आफ्टर दैट द सेकेंड पॉइंट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर्स आर विच कैन कंज्यूम द प्रोड्यूसर। ये हमको पता है, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं उनको हम कंज्यूमर बोलते हैं। तो हमारे नॉर्मल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर हम कैसे हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स ऐसे उसको डिवाइड करते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था। पर यहाँ पे वी आर डिवाइडेड दोज कंज्यूमर इन डिफरेंट मैनर। डिफरेंट मैनर कैसे कि जो उनके खाने के हैबिट्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट कंज्यूमर इज योर जूप्लैंक्टन। मैंने तभी आपको बोला था the phytoplanktons means producer, those are consumed by the zooplankton. छोटे छोटे zooplanktons are there, Daphnia, Moina and diatom. So many zooplanktons are present in the pond ecosystem, and those small insects, ekdam small zooplanktons that cannot be seen by the naked eye, it should be observed under the microscope. They consume this phytoplanktons. Means छोटी सी साइकिल वही के वही हो गई। Phytoplanktons are consumed by the zooplanktons, then decomposition, एक छोटी सी साइकिल खत्म हो गई। After that the नेक्टॉन्स। नेक्टॉन्स आर द फ्लोटिंग फ्लोटिंग कंज्यूमर्स। छोटे छोटे कीड़े हो सकते हैं या जो भी जो मूवेबल है, और वो सारी चीजें यहाँ से जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स को खा रहे हैं या वो जूप्लैंक्टन्स को भी खा सकते हैं अगर साइज बड़ा है। तो दोज आर द मूविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू आउट दिस पॉन्ड। आफ्टर दैट द थर्ड वन इज बेंथिक एनिमल्स। बेंथिक मीन्स द बॉटम एनिमल्स, जो नीचे रहते हैं, दोज आर द बेंथॉन्स हम उसको बोलते हैं, बेंथिक एनिमल्स। दोज आर प्रेजेंट इन द bottom layer of the pond and they can consume all those small things as phytoplankton, zooplankton, primary consumers. बेंथिक में आपका स्नेल एंड ऐसे छोटे वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, मोलस्क, वो सारे बेंथिक में आपके आएंगे। ठीक है। आफ्टर दैट द डिकम्पोजर्स। Decomposers, as we know, which can decompose the dead and decaying organic matter from this whole system. यहाँ पे जितने भी डेड बॉडीज होंगे उनको कंज्यूम करने का काम जो है, दोज आर परफॉर्म बाय द डिकम्पोजर। अदरवाइज वी ऑलवेज सी द डेड बॉडीज, फिश डेड बॉडीज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, बट ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। दैट इज बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजर्स, बिकॉज दे डिकम्पोज ईच एंड एवरी डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड दे मेंटेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दिस इकोसिस्टम। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द पॉन्ड इकोसिस्टम। एक छोटा सा मैं बता देती हूँ उससे रिलेटेड, वेरी नाइसली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज देयर इन अवर टेक्स्ट बुक, सो गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, एक बार पढ़िए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो फूड चेन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। प्राइमरी phytoplanktons are the producer, other rooted vegetations are the producer, and those producer are consumed by the herbivores. Small fishes हो सकते हैं, उसमें छोटे insects हो सकते हैं, those are the herbivores. After that primary carnivores, छोटे छोटे insects हो सकते हैं, those are the primary carnivores. Then big, इनको हम कार्निवोर्स बोलेंगे। ये कार्निवोर्स है, बिग फिशेस आर द कार्निवोर्स। हमारे हर्बीवोर्स में यहाँ पे आपका टर्टल जो है वो आ सकता है। उसके बाद में हमारे कंज्यूमर में या सेकेंडरी कंज्यूमर में स्नेक आएगा, ये बिग फिशेस आएंगे। अगर वहाँ पे क्रोकोडाइल है तो क्रोकोडाइल भी उसमें आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर में। तो इन दिस वे दिस कंप्लीट पॉन्ड इकोसिस्टम, उसमें एक फूड चेन जो है वो रोटेट होती है। दिस इज एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। बहुत बड़ा क्लास नहीं करूँगी मैं, इसके बाद का मैन-मेड इकोसिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स and like the video, subscribe the channel, and please share the video to your friends, your colleagues, and those who are needed, because so many students are not having the regular teachers for EVS subject and they don't have any idea how to do which kind of subject it is, which kind of notes are there, which kind of videos are there. So please share to needed student and कमेंट करो। आप वीडियो देख नहीं रहे हो, जितना डिटेल आप वीडियो देखोगे उतने आपको क्वेश्चंस आएंगे और आप कमेंट कर सकोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।